So there is a message written out there. What is the message there? How many students feel that they are average student? How many of you? How many of you feel that you are average? Are you average? How many students feel that they are average? Don't look that side. Just think about you. What do you feel about yourself? You are an average student? Yes or no? Okay, second one. What are you? I am an intelligent student. Yeah, that's the message. So instead of average student, I say I am a okay, so I am a super student. So what are all the different techniques why I am super? Let's think about it. Normally, these are certain ways. For example, okay, so these are some of the ways of the student, super student. I want to be the okay, and who is stopping you from smiling? Everybody should laughing. Okay, and yes, and so with this fish, now we'll see. We have to say these things to ourselves. Okay, to become a super student, now we will say the same thing. We will give the same message to our mind. So you know how this message will give? So first of all, I am a super student. Okay? And say that with all your power. I am a born winner. My brain power is super. Okay. My memory is excellent. And every day my brain power is increasing. Okay. And respect my teacher. Okay, and I always respect my parents. Okay, and I help everyone. And okay, so I always say thank you. Okay, so with this thinking, so that was the part we had for ourselves. Now, coming to my personality. Okay, because most of our education system, we are always talking about the left part of the brain. We are very less, there is a very non-frequent talk about our right brain. So now, we will be having some focus between the left, some communication between the left and the right brain. So there are certain techniques which will make you some communication between the left and the right brain. Let me once more explain to you. For example, when we say an apple, so all the explanation about the apple is stored in the left part of the brain. Is it clear? All the explanation about the apple is stored in the left part of the brain. So that is what is an apple, what is the course, what is the type of apple, what are the benefits of apple. And we use 90%, almost 90% we use this part of the brain. Okay? And the right brain consisting of color of the apple.
Okay? The color of the apple, taste, smell, touch, feel. Okay? And the usage is around 10%. You know, so one brain usage is 90% and the other brain usage is normally 10%. So do you think it is a balance? Do you think it is a balance? No. So what is the balance mind? 50-50. It should have been 50-50 thing. But it's not 50-50. As of now it is around 90 and 10. Because all our education system, we are always talking about the left brain only, not about the right brain. Okay? So we will tell you some of the technique which will make a balance between the left and the right brain. Will that be good? Yes. Okay? Will that be good? Because that once that balance is done, you will become a totally balanced personality. You know, left part is we call a male brain. तो हम बोलते हैं मम्मा का पापा का ब्रेन, लेफ्ट वाला ब्रेन पापा वाला ब्रेन और राइट वाला जो ब्रेन है वो मम्मा वाला ब्रेन. ओके, इमोशन, फीलिंग. तो लेडीज एंड जेंट्स का जो डिफरेंस है वो सेम सिमिलर वे में होता है. यहाँ लेफ्ट ब्रेन मेल ब्रेन, राइट ब्रेन जो है वो फीमेल ब्रेन. ओके, नाउ वी सी हाउ टू मर्ज दैट गैप बिटवीन द टू. थोड़ा हिंदी मिक्स कर लें. हाँ मिक्स. ओके, नो प्रॉब्लम. हिंदी में इज ओके एवरीवन? ओके, देन सो लेट्स सी दैट. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको दूसरे शब्दों में बताते हैं. हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन का, जो मैंने आपको बताया. लेफ्ट ब्रेन को हम बहुत 90% यूज करते हैं, लेकिन लेफ्ट ब्रेन की पावर बहुत थोड़ी सी है. हमारा राइट ब्रेन बहुत पावरफुल है. कितना पावरफुल है? अराउंड 90%. जिसका हम यूज अभी 10% करते हैं. यूज हमारा 10% है, लेकिन उसकी पावर 90% है. बहुत पावरफुल ब्रेन है हमारा राइट ब्रेन. ओके, कैसे? एग्जांपल से बताता हूं आपको. एग्जांपल के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि हम पढ़ के सारा कुछ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं. एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं. आज सुबह का पढ़ा हुआ भी एग्जाम में जाकर याद नहीं रहता. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम उसे रट्टा मार लेते हैं, क्योंकि हम और अलग अलग टेक्निक लगा देते हैं, जिससे वो थोड़े टाइम के लिए हमारे दिमाग में आ तो जाता है. लेकिन सपोज कोई ऐसा दिन याद करो जहां पर आपको किसी ने बहुत अच्छे से आपकी तारीफ की थी, बहुत अच्छे से आपके मम्मा ने आपको गले से लगाया था. क्या वो दिन कभी भूल सकते हो? कभी भूल सकते हो जीवन में? नहीं ना. तो क्या होता है? फर्क कहां पर है? फर्क ये है कि लेफ्ट ब्रेन जो है, हम हमेशा छोटी छोटी बातें जितनी भी हम स्टोर करते हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है हमेशा लेफ्ट में स्टोर करने की कोशिश करते हैं. और लेफ्ट ब्रेन छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा. और राइट ब्रेन इतना पावरफुल है, उसमें क्या चीज स्टोर रहती है? उसमें कलर स्टोर रहते हैं, उसमें फीलिंग स्टोर रहती है, इमोशन स्टोर रहते हैं. समझ में आई ये बात? समझ में आई है? ओके. सो अगर अब हम क्या करेंगे, आपको राइट ब्रेन को बढ़ाने के कुछ टेक्निक बताएंगे, लेफ्ट और राइट में बैलेंस बनाने की कुछ टेक्निक बताएंगे. ओके, सो कैसे? एक और एग्जांपल से बता रहे हैं. अगर एक एलिफेंट है और एलिफेंट के ऊपर एक राइडर बैठा हुआ है, ऊपर जो बैठा हुआ है महावत जिसे कहते हैं, तो जो महावत है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है. ओके, और जो हाथी है वो हमारा राइट ब्रेन है. बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल. कैसे हम इसका यूज करें? कैसे हम यूज करें? तो इसका मैं आपको अभी आगे सेक्शन में बताता हूं. एक और एग्जांपल से नजर आ रहा है. टेक्निक टू बैलेंस बिटवीन द ब्रेन. ओके, फर्स्ट इज द ब्रेन जिम एक्सरसाइज. सो कमिंग टू द ब्रेन जिम एक्सरसाइज. Okay, brain gym exercise was developed by Dr. Paul Davidson in US, and there are different techniques. There are a set of 26 techniques which includes all these things. There can be performance. Okay, which will improve all these things to you, and you will see that. So your eye teaming, binocular vision, spatial and listening skills, everything will be improved by use of this brain exercise. And now we will show you these brain exercise. Basically, this is the brain gym. We call it brain gym. So we want now everybody to do this brain gym exercise along with this video. I'm playing the video now, and we have to do this brain gym exercise just by following them.
Okay, and here we go. Do everyone? Let's start, everyone. Try. Let's start this. Start this exercise. Just follow it. This is called finger yoga. It's called finger yoga. Do that. Just do that. Do that. Let's try. Let's try. Rotate your finger like this. Rotate your finger like this. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Yes.
Then why you are talking? Some action. Just see that. But lipstick is not there. Learn. One hand is doing this action, the other one is doing this action. Okay, and do this together. One is this, and other is this. Okay. And talking. Okay, thank you so much. Thank you. Now, so exactly, what these things we are doing is, how we are doing it is, two hands are performing different actions. You know what we are doing? Two hands are performing different action. With one hand, I'm rolling like this, okay, and the other hand, I'm rolling opposite. Can you do it both together? When you do it together, that's the beautiful part of it. Because that way, your left and right brain are working simultaneously. Just try once again. The right hand movement like this, okay, and the left hand movement like this, okay, and do them both together. Okay, do them both together. Okay. तो इस पे हम थोड़ा ऐसा फोकस करेंगे. अभी आपने देखा, इसमें हम लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बात समझ में आई है सभी को? ओके, ये वीडियो बाद में भी आपके साथ शेयर करेंगे और हो सकता है आपको ये बाद में ऐसे आप करवा पाएंगे. तो इससे आपको बहुत फायदा होगा. लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस होगा. पहले हमने बहुत सारे स्कूलों में ये एक्सरसाइज करवाई है, जिसमें लगभग 15 दिनों की एक्सरसाइज करने के बाद सभी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत मेजर चेंज आया है. उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है. इसलिए ये एक्सरसाइज हम आपके सर से, मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे. पॉसिबल हो तो दिन में एक बार, नहीं तो वीक में एक बार आप जरूर इसको करें. आपको बहुत बेनिफिट होगा ऐसा करने से. ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में बैलेंस बनेगा इससे. ओके, इज इट क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू द आई बॉल एक्सरसाइज. आई बॉल एक्सरसाइज आपकी आंखों की आई बॉल को लेकर रोटेट करने से होता है. जिन लोगों को चश्मा है, ये 15 ईयर से पहले पॉसिबल है. मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो आई कुड नॉट डू इट, बट आपके लिए पॉसिबल है. अगर ये एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करेंगे तो आपका ये पूरे चांसेस हैं कि आपका स्पेक्ट उतारा जा सकता है. छोटा नंबर है तो बड़ी आसानी से पॉसिबल है. थोड़ी सी देर के लिए एक बार फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट, एंड लेट्स डू दैट आई बॉल एक्सरसाइज. ओके, इसको सिर्फ आपने देखना है और इसमें आपने आंखों का कोई सिर्फ आंखों की मूवमेंट है, सिर्फ आंखों की मूवमेंट. ओके, सिर्फ आंखों की मूवमेंट है. सिर मूव नहीं करेंगे, सिर्फ आंखें मूव करेंगे. ओके, सिर को फिक्स रखेंगे, आंखें मूव करेंगे, सिर्फ आंखें.
Okay, thank you very much. Thank you. So better no stop talking. No discussion here. No discussion here. So did you enjoy that? मजा आया? Okay, because that will अगर आपको आंखों में सच में प्रॉब्लम है तो एक तो आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एट द सेम टाइम आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन में बैलेंस बनता है इससे, यू नो, इसका मेन इफेक्ट आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। इन एडिशन टू योर आईज, आंखें तो ठीक होंगी ही होंगी, ब्रेन की पावर बढ़ेगी। ये बहुत ही अल्ट्रा एडवांस टेक्निक्स हैं जो अभी बहुत थोड़े लोगों के पास ये चीज पहुंची है। एक तो प्राणायाम, हमारे पुराने वाली टेक्निक जो आपको शायद पता होगा, ये टेक्निक्स सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको कहते हैं, आपको पता है सभी को? ओके, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। इससे भी हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन होता है और आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बेहतरीन टेक्निक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत इजीली आपको पता है सभी को। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब इनहेल करेंगे तो राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इज दैट सिंपल। इससे आप दिन में 5 से 10 बार करेंगे इसको तो बहुत अच्छे से आपके लेफ्ट राइट के बीच में बैलेंस बनेगा। जब कई बार पढ़ने बैठते हैं और कंसंट्रेशन नहीं होती, दिमाग कहीं और जा रखा होता है, उस समय में थोड़ी देर के लिए ये वाला एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फायदा होगा। इससे बेहतरीन तरीके से आप ये कर पाएंगे। अब आगे इसके बाद आते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सिंपल ब्रीदिंग में क्या होता है, एक बेली ब्रीदिंग होती है। बेली ब्रीदिंग का मतलब जब आप श्वास लें तो आपकी बेली से यानी पेट से श्वास लेनी है, यानी जब हम इनहेल करें तो चेस्ट में भरने के बजाय पेट में भरना है। इज इट क्लियर? चेस्ट में भरने के बजाय पेट में भरना है, यानी जब हम इनहेल करें तो यहां पर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट यहां होनी चाहिए बेली वाले एरिया में। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायफ्राम मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। तो आप इनहेल करें, 5 सेकंड के लिए श्वास अंदर लें। ओके, 1 2 3 4 5, स्टे देयर, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, and stay there again, 1 2 3 4 5. Once again inhale. So one total breathing takes 20 seconds. 5 second inhale, 5 seconds stopping, 5 seconds exhale, and then again another 5 seconds for stopping after exhale. Okay, so that is called belly breathing. तो belly breathing के लिए जापान के स्कूलों में belly breathing सिखाई जाती है। आज हम भी इसी चीज के लिए आपको छोटा सा मैसेज देने के लिए आए हैं कि आप भी थोड़ा सा इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, इससे बहुत फायदा होगा। जिन बच्चों को गुस्सा बहुत आता है उनके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। छोड़ना चाहते हैं गुस्सा? छोड़ना चाहते हैं? यस, यस और नो? लेट्स ट्राई दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल टेक्निक। बेली ब्रीदिंग करने से बहुत सारे बच्चों का जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज समझ में आ रही है। बहुत सिंपल छोटी छोटी टेक्निक्स है और आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। एक और टेक्निक है थ्रो विद द ब्रेथ। इसका मतलब होता है बहुत जोर से श्वास को बाहर फेंकना, लाइक दैट। थ्रो फास्ट फास्ट फास्ट, एक्शन करें लेकिन मुंह से बोले ना, ये दिखाने के लिए थ्रो विद द ब्रेथ बहुत बेहतरीन टेक्निक है। जब आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हो और आपको पढ़ने बैठना है तो कई बार ऐसा होता है किताब सामने रखी हुई है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है, उसको अगर बैलेंस इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है तो ये एक बेहतरीन टेक्निक है। सिंपल, श्वास को जोर से बाहर फेंकेंगे, आपकी पूरी एनर्जी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है और उससे आप पूरा फोकस इस मोमेंट पर कर पाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द लेफ्ट राइट ब्रेन वर्कआउट। इट्स ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, आपके सामने एक कलर नजर आ रहे हैं, कुछ लेटर लिखे हुए हैं कुछ डिफरेंट कलर के साथ। ओके, तो एक बार आप सभी पहले अपने मन में पढ़ेंगे, जोर जोर से नहीं पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इनका कलर पढ़ते जाएंगे, जो लेटर लिखा हुआ है आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, फिर नीचे जाना है, उसके बाद नीचे आना है। तो इसको पहले आपने सिर्फ कलर पढ़ना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है, इस कलर में लिखा हुआ है पर्पल। ओके, सो रीड द कलर नाउ वन बाय वन। फर्स्ट इज
letters. Now read the letters. जो अक्षर लिखे हुए हैं अब आप उन अक्षरों को पढ़ेंगे. Now do the reverse of that. आप इन अक्षरों को जो आपने लिखा हुआ है इन अक्षरों को पढ़ेंगे एक बार. अब पढ़ें एक बार दोबारा से. From the activities only. So no tongue movement. Okay? Good. So ये अभी हमने जो देखा है ये बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज है जिससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है. इस चीज के ऊपर हम आपको और विस्तार से और डिटेल से आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको कवर करेंगे. अभी हम लोग आपको जो हमारी रियल टेक्निक है जिसके द्वारा अभी आपने देखा कि वो जो हमारे दो बच्चे स्टूडेंट जो साथ लेकर आए थे ये लोग एक्टिवेट कैसे हुए, क्या हुआ है इनके ब्रेन के अंदर, क्या किया है हम लोगों ने जिससे ये चीज एक्टिवेट हो जाते हैं. और ऐसा आप भी कर सकेंगे क्योंकि आपकी ब्रेन की पावर नॉर्मली जितनी भी है ये एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम 10 गुना से लेकर 100 गुना तक बेटर होती देखी गई है. अलग अलग जगह पर अलग अलग रिजल्ट आते हैं. आपकी ब्रेन पावर बहुत बढ़ जाती है अगर ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से. और हमारी जो टेक्निक है जिसको हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन या थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं, अगर ये हो जाता है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसका. तो एक बार हम आपको वही टेक्निक शेयर करके बताते हैं. ओके, तो अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. हमने 2-3 टेक्निक सीखी है. हमने क्या क्या सीखा आज? क्या क्या सीखा? आई बॉल एक्सरसाइज जिसमें हम आईज की डिफरेंट मूवमेंट कर रहे थे. हमने ब्रेन जिम सीखा. क्या सीखा? ब्रेन जिम में हम अपने हैंड्स के डिफरेंट मूवमेंट कर रहे थे. ओके, कोशिश करेंगे आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बाद में भी याद रहेंगे. ये वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेंगे तो इसके बाद आप एक्सरसाइज कर पाएंगे. इसके अलावा हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपको बताया थोड़ा सा. तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में आप जितना अच्छा बैलेंस बना पाएंगे उतना बेहतरीन आपकी स्टडीज के रिजल्ट आएंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी. इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे माइंड मैप. सुना है आपने माइंड मैप क्या होते हैं? माइंड मैप सुने हैं? कभी यूज किए हैं माइंड मैप्स? न्यूमोनिक्स यूज किए हैं कभी? न्यूमोनिक्स यूज किए हैं? किसने किया न्यूमोनिक्स यूज? हाउ मेनी स्टूडेंट्स न्यूमोनिक्स यूज किए हैं कभी? बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट को याद करने के लिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी चीजें याद होती हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं. उसको याद रखवाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं. समय होगा तो फिर आपको उसके बारे में कभी बता पाएंगे. अभी माइंड मैप का मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके. ओके, माइंड मैप के बारे में. माइंड मैप का मतलब होता है लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने की एक टेक्निक है. जैसे आमतौर पे क्लास में हम नोट्स लेते हैं तो नोट्स को हम लिखते जाते हैं, हम सीधा सीधा ऊपर से लिखा और नीचे 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 लिखते जाते हैं. ओके, इसमें हमें क्या करना है, लिखने की बजाय हमें ड्रॉ करना है, हमें ड्राइंग करनी है, एक ब्यूटीफुल सी ड्राइंग करनी है. कैसे? एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, आपको याद रहेगा. ओके, इसको मैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए एक सिंपल सिंपल सिंपल. ओके, फॉर एग्जांपल फ्रूट के बारे में देखते हैं. ये दिख रहा है आपको सभी को? फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स पता लग रहे हैं. फ्रूट कलर के बेसिस पे बताया गया डिफरेंस. मान लो आपको ये पूरा एक बहुत लंबा चैप्टर लिखा हुआ है, फ्रूट के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, फ्रूट कैसे होते हैं,
उनको खाने से किस किस तरह के कलर वाले फ्रूट होते हैं और उनको खाने से किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, राइट, या टेस्ट कैसा होता है, कुछ खट्टे होते हैं कुछ मीठे होते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है, मान लो 4 पेज का चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो दिमाग में नोट्स प्रिपेयर करते हैं। अभी अधिकतर हम क्या करते हैं, हम लिखते जाते हैं, जो टीचर बोल रहे हैं हम लिखते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं? लगभग सभी करते हैं, लगभग सभी। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, इसको माइंड मैप बोलते हैं। तो माइंड मैप में आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक कुछ छोटा सा डायग्राम बनाना है, समझ रहे हैं? ये डायग्राम बनाना है, जैसे बीच में आपने एक फ्रूट बनाया, फिर आपने एक कैटेगरी बनाई, जैसे मान लो टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट जिनका टेस्ट कैसा है, अगर वो खट्टा है या चबाने लायक है या फिर कड़वा है या मीठा है, तो ये कैटेगरी हो गई सारे फ्रूट्स की। समझ पा रहे? तो फ्रूट्स के टेस्ट के बेसिस पे एक कैटेगरी है, ऐसे ही फ्रूट के कलर के बेसिस पे दूसरी कैटेगरी है। कुछ येलो रंग के फ्रूट्स होते हैं, कुछ ग्रीन रंग के होते हैं, राइट, और कुछ रेड के होते हैं, ऐसे डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स होते हैं। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, जैसे डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? ओके, ये कोशिश करेंगे आपको कोई भी चैप्टर के बारे में ऐसा करना। सपोज पोल्यूशन के बारे में हम आपको लिखना है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है जिसमें 8-10 पेजेस हैं और बहुत लंबे एक्सप्लेनेशन है। अब आपको पूरा कुछ याद करने के लिए अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है। बीच में सबसे पहले सेंटर में हम एक गोला बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे? पोल्यूशन, जो मेन टॉपिक है। फिर उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, उसमें हम ब्रांच बनाएंगे उसकी। एक एग्जांपल से आपको देखिए, जैसे ये हेल्थ के बारे में है, तो एक अपने मेन सेंटर में हमारा एक फोकस है हेल्थ के बारे में। अगर हम फोकस करते हैं, उसी प्रकार हम पोल्यूशन के बारे में एक छोटा सा ये हम बनाएंगे। जैसे बीच में सेंटर में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बीच में सेंटर में लिखा हेल्थ, तो टॉपिक है हेल्थ का। ऐसे ही पोल्यूशन के लिए अगर आपको बनाना है तो आप बीच में सेंटर में पोल्यूशन लिखेंगे, फिर आप एक ब्रांच बनाएंगे यहाँ पर अभी जैसे हेल्थ के लिए स्लीप बहुत जरूरी है, ये बात सभी को पता है। अच्छी स्लीप, अच्छी नींद बहुत जरूरी है, तो जितनी अच्छी नींद होगी उतना हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तो इसी तरह से पोल्यूशन के बारे में अगर हमें लिखना है तो एयर पोल्यूशन को लेकर हम लिखेंगे, फिर एयर पोल्यूशन में अलग अलग टाइप कैसी होती है, कैसे एयर पोल्यूशन होता है, फिर उसकी हम ब्रांचेस बनाते चले जाएंगे आगे। ये समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, बहुत ही आसान है। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार अपने दिमाग में ये माइंड मैप बना लेंगे, जैसे इस पिक्चर को दिखाने के बाद, अगर मैं इस पिक्चर को छुपा लेता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस पिक्चर की बहुत सारी चीजें याद रख पाएंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी बजाय मैं आपको बहुत बड़ी सी किताब दे दूं यहाँ पर पढ़ने को, पता नहीं कितना आप उसमें से याद रख पाएंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज द पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, दैट इज क्लियर, राइट? सो इसीलिए आपको माइंड मैप का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि माइंड मैप आपके राइट ब्रेन में स्टोर होते हैं, और राइट ब्रेन आपका 90% पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसीलिए बस ये पावर है, ये आपको बताना था, ये मैसेज था आज का हमारा में, कि ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने राइट ब्रेन की तरफ करना है, राइट ब्रेन की तरफ। कोई भी चीज के बारे में आप अगर याद करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने फीलिंग लेकर आए। आपकी फीलिंग जहां होगी, इमोशंस होंगे, कलर होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज याद हो पाएगी, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हम छोटा सा मैसेज यही कन्वे करना चाहते हैं। माइंड मैप का बस इतना सा ही एक छोटा सा टॉपिक था। एक लास्ट चीज न्यूमोनिक्स के बारे में आपको बता देते हैं, जो आपको बहुत आसान रहेगा याद रखना। न्यूमोनिक सिस्टम है, एक नंबर रिदम पैगिंग टेक्निक होती है, ये आपको बता देते हैं। सपोज आपको ये पूरी लिस्ट को इसी सीक्वेंस में याद करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्या याद रख सकते हैं सीक्वेंस में? एक बार पढ़ लें। स्टूडेंट, गर्ल, कैट, लीफ, मिल्क, ऑरेंज, कैट, कार, पेंसिल, शेड एंड व्हाइट। ये पूरी लिस्ट आपको याद करनी है। तो हम क्या करते हैं आमतौर पे, हम क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, बार बार पढ़ के रट्टा लगाते हैं। जबकि हमारा जो ब्रेन है वो शब्दों को नहीं समझता। हमारे दिमाग में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल से बताया, अगर आपको मम्मा ने कभी हक किया था, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, वो इमोशंस आपको सदा याद रहते हैं। लेकिन किसी ने कुछ बोला, ऐसा था वैसा था, वो शायद हम भूल जाएंगे, या जो पढ़ा लिखा था वो भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का बेस्ट टेक्निक क्या है? अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना। कैसी पिक्चर?
एक बार छोटा सा दिखा देते हैं पिक्चर कैसी होती है। मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती के साथ कुछ पिक्चर्स को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं 1 के साथ मिलती जुलती एक चीज जो जिससे हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं वो क्या है? सन। ओके, तो 1 के साथ सन, 2 के साथ शू, 3 के साथ ट्री, हम फेमिलियर हैं उसके साथ, मिलता जुलता वर्ड है, राइट। और 4 के साथ डोर, 5 के साथ हाई, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है हाई, और 6 के साथ 6, इट इज वेरी नियर टू 6, ओके। 7 के साथ 7, और 8 के साथ 8, 9 के साथ 9, और 10 के साथ 10। अब ये एक बार अगर आपको याद हो गया, ये बड़ा आसान है याद रखना, बिकॉज मिलता जुलता है और हमारा माइंड रिदम को बड़ी आसानी से स्टोर कर पाता है। इज दैट क्लियर? ओके, और इस टेक्निक के साथ हमें वही लिस्ट को याद करना है। अब आपको देख लो कैसे इमेजिनेशन आप लगा पाएंगे। सेम लिस्ट है, अब आप बताएं पहली बारी में स्टूडेंट के साथ आपको क्या जोड़ना है? 1 एंड सन, 1 एंड सन। सन एंड स्टूडेंट को कंबाइन कैसे करेंगे? सन एंड स्टूडेंट को आप एक साथ रखेंगे, कैसे देखेंगे? एक स्टूडेंट के पीछे बहुत बड़ा ब्राइट सा सन दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब एक बहुत बड़ा सा सन है, उसके आगे एक स्टूडेंट आप खड़े हुए हैं, बैग लगाया हुआ है आपने, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में इतना बड़ा सा सन है। याद रह पाएगा? याद रह पाएगा? अब से 10 साल भी पूछेंगे, बाद भी पूछेंगे, तब भी याद रह पाएगा? यस, दैट इज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। अगर मैं आपको आज स्टूडेंट 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे आप, बहुत मुश्किल होगा आपको। अब सेम चीज को 2 नंबर पर, 2 नंबर पर शू के साथ बल्ब को कैसे जोड़ेंगे? शू के साथ बल्ब को कैसे जोड़ेंगे? एनीथिंग इज फाइन, कैसे भी आप इमेजिन करो, अपनी इमेजिनेशन में आपको लेकर आना है और आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सभी को समझ में आ रहा है? पीछे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So that is a simple technique. Response so fast, बातें नहीं करनी। Last person. माइक ले लो, ये करेगा टीचर पहुंच नहीं। 3 नंबर पर कैट है, ट्री। तो कैट और ट्री को कैसे कोरिलेट करेंगे? ट्री के ऊपर कैट बैठी हुई है, ओके? ट्री के ऊपर कैट बैठी हुई है, पॉसिबल है? बैठती है कैट? ट्री पर बैठती है, ओके डन। एंड 4 नंबर पे लीव, 4 पर क्या था? ऑरेंज डोर, डोर के ऊपर लीव, कैसे जोड़ेंगे आपस में? कैसे जोड़ेंगे आपस में? कोई इमेजिन करो, कैसी इमेजिनेशन होगी? घर में कई बार वो पत्ते बांधते हैं, याद है सभी को? याद रहेगा? इमेजिन करना आसान है, ओके। 5 नंबर पर 5 इज मेल, 5 इज हाई, कैसा होगा? हाई के साथ मिल्क को जोड़ेंगे, कैसा लगेगा? क्या स्टोरी बनेगी? क्या स्टोरी बनेगी? हाई में क्या होता है? हाई में शहद होता है ना, शहद के साथ मिलाकर दूध पी रहे हैं। इज दैट ओके? याद रहेगा? ओके। 6 नंबर पर ऑरेंज, ऑरेंज के साथ कैसे जोड़ेंगे? 6 और ऑरेंज को कैसे जोड़ेंगे? 6 के ऊपर ऑरेंज बना हुआ है, बड़ा सा ऑरेंज है, बहुत बड़ा सा, याद रहेगा? मुश्किल नहीं है। 7 नंबर पर हेवन के साथ कार कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे हेवन के साथ कार को? हेवन के अंदर कार जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 8 नंबर पर क्या होता है? 8 ओके, पेंसिल के साथ कैसे जोड़ेंगे? गेट के ऊपर पेंसिल से लिख दिया, याद रहेगा? ओके। 9 इज शर्ट, 9 के साथ क्या था? वाइन और शर्ट को कैसे जोड़ेंगे? ओके। एंड 10 नंबर पर 10 इज हैंगर, राइट को कैसे जोड़ेंगे? मुर्गी लिख रही है, याद रहेगा? याद रहेगा? ओके। अब मैं आगे पर आ रहा हूँ। अब आपसे सिर्फ पूछूंगा 6 नंबर पर क्या था? 6 पर क्या था? याद रहेगा? आसान है, बहुत आसान है। ओके। 3 पर क्या था? 3
याद रहेगा? डी के ऊपर कौन बैठा था? आसान है? ओके ओके, कमिंग बैक टू 10, नंबर 10 पर क्या था? याद रहेगा? We have learned a very beautiful method. बहुत आसानी से, छोटा सा मेथड है जो आपको लंबी लंबी लिस्ट याद करने में बहुत आसानी से आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ जाएगी तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। एक और ब्यूटीफुल चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, हम 3 तरह के लर्नर होते हैं। हमारे में से 3 तरह के लर्नर होते हैं। हमारे सीखने की 3 टेंडेंसी होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख कर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? तो कुछ बच्चे जो देखकर सीखते हैं वो कैसे होंगे? जो विजुअल बच्चे होंगे, देखकर सीखेंगे, उनको पिक्चर बड़ी अच्छी से समझ में आती है। जो भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसानी से याद हो जाती है। हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा जो है विजुअल ब्रेन है, क्योंकि सारी पिक्चर्स हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती हैं। ओके, सिमिलरली ऑडिटरी जो बच्चे होंगे उनको क्या होगा? उनको सुनने में बड़ा मजा आता है। सुनने में मजा आता है। म्यूजिक सुनने में कितना अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है म्यूजिक? म्यूजिक कितने बच्चों को अच्छा लगता है? ओके, हम आपको एक खास तरह का अल्फा म्यूजिक देंगे, जिसके बाद अल्फा म्यूजिक, ओके ओके, अल्फा म्यूजिक आप जब पढ़ाई करने बैठे वो म्यूजिक हल्का सा साथ लगा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी कंसंट्रेशन देगा। इतना ब्यूटीफुल और प्यारा सा म्यूजिक होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत मजा आएगा और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आपका ऑडिटरी के लिए है। और तीसरा किनेस्थेटिक। अगर आप किनेस्थेटिक है, किनेस्थेटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, आप टिक के नहीं बैठते। कितने बच्चे से टिक के नहीं बैठते? टिक के नहीं बैठते? ओके गुड। अब ऐसे के लिए क्या इलाज होता है? किनेस्थेटिक जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या इलाज होता है? आप अपने बॉडी को कहीं ना कहीं पहले कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपकी बॉडी की एनर्जी का यूज किया जा सके। जैसे आप अपने स्कूल का एक चक्कर लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास थोड़ी देर के लिए हाफ किलोमीटर के लिए दौड़ के आ सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी जो है आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, बेटर बनाने में यूज हो जाए। एक बार वो एनर्जी यूज हो जाएगी फिर आपका दिमाग जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा लग पाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इस आप में से कितने बच्चे विजुअल हैं, कितने ऑडिटरी हैं और कितने किनेस्थेटिक हैं, ये आप खुद अपने स्टाइल से पता लगा सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो विजुअल हैं? कितने लोगों को लगता है वो विजुअल हैं? विजुअल का मतलब होता है देखकर सीखते हैं, देखकर सीखने वाले लोग। ओके, कोशिश करेंगे आप देखने वाली ही टेक्निक का यूज करेंगे। आप घर पे जब भी पढ़ेंगे पिक्चर बना कर पढ़ेंगे, ड्रॉ करके पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा याद होगा। ओके, हाथ नीचे, थैंक यू। Sit properly, everybody sit properly. 65% जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअल विजुअल होते हैं। 65% बहुत सारे लोग विजुअल होते हैं, और विजुअल होना ही बहुत अच्छा पार्ट है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग अलग अलग, हर एक की अलग अलग टेंडेंसी है। तो कुछ जो ऑडिटरी होंगे 30% ऑडिटरी होते हैं और 5% किनेस्थेटिक होते हैं। किनेस्थेटिक मतलब हरकत वाले। ओके, तो मैंने आपको जैसा बताया, कोशिश करेंगे जो आपका अपना स्टाइल है आप उसी स्टाइल में सीखेंगे। यानी जो ऑडिटरी बच्चे होंगे, ऑडिटरी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? आप बोल कर पढ़ें। जब आप घर पे पढ़ें तो बोलें और अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लें। अगर हो सकता है घर पर जब आप पढ़ाई करें अपनी वॉइस में आप रिकॉर्ड कर लें, उसी को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कितने लोगों को लगता है कि वो ऑडिटरी है? कितने लोगों को लगता है ऑडिटरी है? ओके, पीछे ऑडिटरी सुन के याद करने वाले लोग, सुन के याद करने वाले लोग। अगर आपको ये लगता है तो आप थैंक यू। सिर्फ आपको बताने के लिए पूछ रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑडिटरी हैं तो आपको, इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट भी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन बेहतर पार्ट क्या है, अगर आपको खुद पता लग रहा है कि आप ऑडिटरी हो तो अपनी बात को रिकॉर्ड करके या अपनी बात को खुद से बोल कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो पाएगा। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट विजुअल ऑडिटरी के बारे में है। ये हम आप विजुअल वाले जो होंगे ये मैंने बता दिया आपको, विजुअल के बारे में डिटेल में बताया, विजुअल ऑडिटरी मैंने बताया, किनेस्थेटिक बताया।
इसके बाद अल्फा म्यूजिक हम आपको देंगे, ये म्यूजिक हम आपको देकर जाएंगे सो दैट आप बाद में भी आसानी से सीख पाएं। मैं थोड़ा सा बस कवर करते हुए लास्ट में एक चीज, जो छोटी सी चीज जो आप अपने बारे में बिल्कुल क्लियर करना है, अपने बारे में। ओके, क्या दिख रहा है हमें कि हमारी अपनी खुद की इमेज कैसी है हमारे बारे में। हम पहले वाली इमेज को देखते हैं या दूसरे वाली इमेज को देखते हैं? ओके, पहले वाली, यानी अगर हम जितने हैं हम उससे अपने आप को बेटर देखते हैं। ओके, हम उससे अपने आप को बेटर देखते हैं, हम जैसे हैं अपने आप को उससे बेटर देखते हैं। तो ये बिल्ली जो है अपने आप को, एक कैट जो है अपने आप को शेर की तरह देखती है। दैट इज माय फ्यूचर। ओके, तो हमें तो जैसे फर्स्ट वाली इमेज को हमें लेकर चलना है, तो अब बहुत सारी चीजें हमारे बारे में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं। हम अपने, जैसे मैंने आपसे पूछा आप क्या है, हमें लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, हम ऐसा बोलते हैं मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। कुछ ऐसे सोचते हैं कि मैं मैथ में या एसएस में या साइंस में बहुत कमजोर हूँ, सोचते हैं कुछ लोग सोचते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे से अपनी सोच को हम बंद करेंगे और एक पॉजिटिव सोच बनाएंगे, क्योंकि ऐसा सोचने से हमारा मन वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, कितने लोगों को लगता है उनकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है? लगता है हमको, लगता है थैंक यू। अगर आपको देखिए, ये भी मेरी एक अजम्पशन है, मैंने माना है कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है। ओके, अगर मैं आज से कहना शुरू की हाँ मेरी हैंड राइटिंग में अब सुधार हो रहा है, अगर मैं कहूँ तो इज इट ओके? इज इट ओके कह सकता हूँ मेरी हैंड राइटिंग में अब सुधार हो रहा है। ठीक है, खराब थी लेकिन अब सुधार हो रहा है। कैन आई से दैट? यस, ओके। ये नहीं कहना अगर खराब है तो एकदम से ये नहीं कहना मेरी हैंड बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बोलना, बट हाँ मेरी हैंड राइटिंग अब बेटर हो रही है। ओके, सिमिलरली बहुत सारे बच्चों की ये स्टेटमेंट होती है, मुझे सब कुछ पता होता है लेकिन क्लास में बोला नहीं जाता। कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं? लगता है ऐसा, मुझे सब कुछ पता होता है लेकिन क्लास में बोला नहीं जाता, ऐसा लगता है। तो ये चीज आज से अपने आप को हम पॉजिटिव अफर्मेशन में एक लाइन बोलेंगे, मुझे जितना पता होता है मैं उसको बेहतरीन तरीके से बोल सकता हूँ। बोलेंगे मेरे साथ एक बार, मुझे जितना पता होता है बेहतरीन तरीके से बोल सकता हूँ, अपनी बात को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं सब पढ़ता हूँ लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता। अपने आप को आपने क्या बोलना है इसकी बजाय? मुझे सब याद रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे वो सब याद रहता है। तो पॉजिटिव लाइन अपने बारे में हम कहेंगे। अब ये नेगेटिव, और इस तरह के लोग भी बहुत सारे बोलते हैं, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, या मुझे वो टीचर पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा हमारे मन में स्टेटमेंट होती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज नो नेगेटिव प्रोग्रामिंग। अपने मन के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट ना लेकर आए, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना लेकर आए। जिस चीज को आप जैसा मानना शुरू कर देते हो वैसा आपको वैसा लगना शुरू हो जाता है और वैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आज से पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, एटलीस्ट इतना भी अगर हम कर पाए बहुत बड़ा मैसेज हमारा कन्वे हो पाएगा। तो आगे से कुछ मैं पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपको बताता हूँ कैसी होती है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। लास्ट में ओके, लास्ट लाइन, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने लिए बोलनी है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, अपनी मेहनत से मैं हर सब्जेक्ट को आसान बना सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैथ या इंग्लिश या एसएस में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो भी सब्जेक्ट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उस सब्जेक्ट को ये कहना शुरू कर दो कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है। ये नहीं कहना कि बहुत स्मार्ट हूँ लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है। जो फेवरेट होगा वो आपको सदा याद रहेगा, वो आसानी से याद रख पाओगे। इज इट क्लियर? ओके। और लास्ट इज एवरीवन अप्रिशिएट मी, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं और आई एम वेरी एक्टिव इन स्टडीज, आई एम टोटली फोकस ऑन स्टडीज, आई कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर, मैं बहुत देर तक पढ़ सकता हूँ। कैन वी सी दैट? बोल सकते हैं? ओके। सिमिलरली अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी, अपनी कंसंट्रेशन के बारे में हमें कहना है, मैं हर काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ।
मैं हर काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ। किसी भी काम में कंसंट्रेशन को लेकर आना मेरे लिए बहुत आसान है और मेरी कंसंट्रेशन बेटर होती जा रही है। इस तरीके से आप अपने मन में पॉजिटिव सजेशन देकर अपने मन से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं और जो भी आप इस तरह से करेंगे वो सदा आपकी अपनी इमेज जो बनेगी अपने बारे में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज बन पाएगी, जिसके द्वारा आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन पाएंगे। Okay, with that I say thank you very much once again. सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for those basic lessons and techniques for students. And yes, I'm very glad to see you here. With such a wonderful technique you have, and this can give our students more than 100% if they will utilize them. So please, yes students, how was the techniques we could share with you? Wonderful? Good? Okay. So thank you very much. Thank you very much. Okay. So you will keep sitting here, and I think you will read here. Maybe. Students you will see that even after this blindfold, just check it out whether she can see. Can she see something? Anything you are able to find it out? No. Okay. Let's give her a card. There are some cards with some colors, okay, and some numbers. So we are able to see some of the numbers and cards. We are able to show that she is able to see blindfolded all these numbers and cards. Okay? Just see there. Somebody come from there. Okay. Just come. Go. Yeah, come. Give her a card. A card आपको कोई भी card select करो. Any card. Okay? So this is a card. This is a card. Okay? D लिखा हुआ है white color से background color red. D लिखा हुआ है. Yeah. She is performing some actions. Basically, her third eye or midbrain is activated. And she is performing some action blindfolded. She is trying to find it out. She is smelling the card. She is touching the card to her skin. And you see the card, like how she is able to tell that. Y लिखा हुआ है red color से background color purple. Why is it X लिखा हुआ है white color से background color blue. Show it. बुक या भाई ये आपके पास कोई बुक है बेटा? Do you have any book, normal book? No? नो Please, Spanish magazine only too. मैगजीन हाँ दे दीजिए। Everything is fine. कोई क्वेश्चन पेपर दे दो. Question paper. White no discussion, no discussion बेटा. So it's a question paper. Something is written there on the question paper. Okay. The Golden Era Public School subject science. Yeah. बोलो. The Golden Era Public School subject science class 6 unit test. Unit test. Okay. Golden Era Public
Institute among IAS. Right. स्पीड है ना ऊपर वाली लाइन ओके द्वारा डॉक्टर विकास नई परीक्षा Yes, why not? प्रणाली में निबंध की निर्णायक भूमिका थैंक यू Please clap for us. How many? क्या पढ़ेगी सुनाई मोबाइल देख के 100